کراچی میں افسوسناک واقعہ، سرجانی ٹاؤن میں 5 کم عمر لڑکے تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ بچوں کی عمریں 9 سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ مرنے والے بچوں کے گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ یہ ساتھ ساتھ جو یہ ہر ہفتے پانی آتا ہے، جو پانی یہ واٹر بورڈ کا جو یہ ہے نا KDA کا سپلائی ہو رہا ہے، جو گر رہا ہے نیچے ضائع ہو رہا ہے، وہ پانی سارا آ رہا ہے اس کھڈے میں، اس میں جا رہے ہیں بچے نہا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں۔ سرجانی ٹاؤن کے تالاب میں ڈوبنے والے 5 بچوں کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں MQM اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے ساتھ علاقے کے عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 9 دہشت گرد مارے گئے، 1 گرفتار ہوا۔ پاک فوج کے 2 جوانوں نے وطن پر جان قربان کر دی، 5 زخمی ہوئے۔ نیب کا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ۔ اراضی کیس میں قائد نون لیگ کے وارنٹ گرفتاری جاری، اشتہاری قرار دینے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ پاکستان میں کرونا وائرس تشویشناک حد تک پھیلنے لگا، 24 گھنٹے میں مزید 338 افراد میں جان لیوا وائرس کی تصدیق۔ ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 13,000 سے بڑھ گئی۔ مہلک وبا میں مبتلا 272 افراد موت کی نیند سو گئے، 2,886 افراد صحت یاب۔ پنجاب میں 5,378، سندھ میں 4,615 اور خیبر پختونخوا میں 1,393 مریض رپورٹ۔ گلگت بلتستان میں 308، اسلام آباد میں 235 اور آزاد کشمیر میں 55 افراد متاثر۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس۔ ملک میں کورونا سے بدلتی صورتحال اور رمضان سے متعلق گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کا جائزہ، مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی غور کیا گیا۔ ہم نے ایک نیا سسٹم شروع کیا کہ جس کے تحت NDMA ان کو براہ راست ہسپتالوں کے اندر پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی چیزیں جو ہیں وہ بھجوا رہے ہیں۔ NDMA کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کے سپلائی سیکشن میں اگر آپ جائیں تمام تفصیلات مل جائیں گی۔ NDMA اسپتالوں کو براہ راست سامان پہنچا رہی ہے۔ ویب سائٹ پر سپلائی سیکشن میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ معاون خصوصی ظفر مرزا نے عوام سے مساجد میں جانے سے گریز کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جو 20 نکاتی کمٹمنٹ اس قوم سے کی ہے، حکومت سے نہیں، یہ اس قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم مساجد کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ مساجد کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ حکومت اور علماء کے درمیان معاہدے پر عمل کے لیے تحفظات ہیں۔ فردوس عاشقوان کہتی ہیں موجودہ صورتحال میں امام، خطیب اور مؤذن کا بھی اہم کردار ہے۔ 20 نکاتی معاہدے پر منوان عمل کیا جائے۔ احساس پروگرام میں سیاسی مداخلت اور اقربا پروری کا کوئی راستہ نہیں۔ معاون خصوصی ثانیہ نشتر کہتی ہیں احساس پروگرام میں شفافیت اولین ترجیح ہے۔ ٹوٹل 872 لوگ کیور ہو چکے ہیں۔ اس سے 24 گھنٹوں میں یہ تعداد 70 تھی۔ 81 لوگ وفات پا چکے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ان کی تعداد، وفات پانے والوں کی تعداد 3 تھی۔ سندھ میں مزید 383 مریض سامنے آ گئے، 3 دم توڑ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ویڈیو پیغام، کہا صوبے میں اموات 81 ہو گئیں، 41 مریضوں کی حالت تشویشناک، 3662 افراد زیر علاج۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مزید 3 پیرامیڈکس کورونا کا شکار۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 2 نرسوں اور 1 پیرامیڈیکل اسٹاف میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ PIC میں کورونا سے متاثرہ طبی عملے کی تعداد 32 ہو گئی۔
प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब की जो कुर्बानी है उसको हम सल्यूट पेश करते हैं, और तमाम डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ और तमाम फ्रंट फुट पे हमारे जो इस वक्त कुर्बानी अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, अपने उन लोगों के लिए दे रहे हैं कि जिसकी पूरी दुनिया में अगर आप ग्लोबली देख लें तो मेरे ख्याल में इसका कोई मिसाल नहीं है। अवाम की जान पर कोई समझौता नहीं कर सकते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का डॉक्टर्स और तबी अमले की कुर्बानियों को सलाम। कहा खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से 93 अफराद जान से गए, 450 अफराद सेहतयाब हुए। वज़ीर आला पंजाब की कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा जेलों में सहर व इफ्तार के लिए कैदियों को बेहतरीन सहूलतें दी जाएं। कहा कैदियों का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। सवात बिंटर की मकामी फनकारा नीलू कोरोना वायरस का शिकार, मगर कोरोना का मरीज होने से मुसलसल इनकार। फनकारा की रहायशगाह की मुतासरा गली को करंतना करके सील कर दिया गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी मुश्किल तरीन हालात का सामना है। हुकूमत सूरत हाल से निमटने के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। सीनियर वज़ीर अलीम खान कहते हैं तमाम शोबे मुश्किलात में हैं, मिलजुल कर सामना करना होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी में 9 मई तक तोसी कर दी। बुजुर्ग खवातीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सिंध भर में 182 ऐसे बच्चे हैं, 182, जो कि कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हैं। 899 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जिनके कोरोना वायरस के टेस्ट अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। सिंध में 10 साल से कम उम्र 182 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार। तर्जुमान सिंध हुकूमत का दिल दहला देने वाला इंकशाफ। बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना खौफनाक करार। मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील कर दी। इमरान खान फॉरेन फंडिंग से मुसलसल फरार हासिल कर रहे हैं। खान साहब तलाशी देना होगी, अब कौम को रसीदें पेश करना होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने फॉरेन फंडिंग केस में शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर के माहीगीरों के लिए बड़ी खबर, विफाक ने शिकार के लिए क्लियरेंस दे दी। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने माहीगीरों को समंदर में मछली के शिकार की इजाज़त दे दी। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं मैरीटाइम सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर SOP पर अमल कराएगी। चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ताखीर, इमरान खान का एतराफ़ जुर्म है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को सब्सिडी के फैसलों का जिम्मेदार करार दे दिया। बोले रिपोर्ट में ताखीर से 100 अरब के हुकूमती डाके की तस्दीक हो गई। सिंध में कोरोना से लड़ने वाला तिब्बी अमला भी मोहलिक वायरस का शिकार। अब्बासी शहीद अस्पताल के एक और डॉक्टर आलमी वबा से मुतासिर हो गए। अस्पताल की इमरजेंसी में काम बंद कर दिया गया। तिब्बी अमले में खौफ की लहर दौड़ गई। PIA की खुसूसी परवास पर कोरोना से बचाव के SOPs मुकम्मल नजरअंदाज। परवास पर समाजी फासले के लिए तयशुदा हिदायत भी हवा में उड़ा दी गई। SOPs नजरअंदाज किए जाने पर मुसाफिरों का एहतजाज, वीडियो वायरल। बहुत मुश्किल में, हम बहुत मुश्किल में, बहुत महंगाई कर दी इन लोगों ने, हद से ज़्यादा कर दी। क्या खाएं, गरीब बंदा कुछ भी नहीं खा सकता है। ये खुद खा सकते हैं, बस महंगाई करते हैं। इनका खाने का पूरा हो सकता है, इनको गरीब का कोई एहसास नहीं रहा। रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू होने के बाद मुल्क भर में गिरां फरोश सरगर्म। सब्जी, गोश्त और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा। नई कीमतों ने रोज़ेदारों को परेशान कर दिया। लीमू की कीमत 200 रुपये से बढ़कर 400 रुपये किलो हो गई। गोश्त की कीमत में 10 रुपये इजाफा। सफ़ेद पोश तबका हुकूमती रिलीफ का मुंतज़िर।
मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स खुल गए मगर अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत। यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडी वाली अशिया आटा, चीनी, मसाले, बेसन वगैरह गायब। अवाम की जानिब से हुकूमत से अशिया की अदम फराहमी की शिकायत। लॉकडाउन के बायस कराची में कारोबार शदीद मुतासिर। मार्केट में अशिया तो मौजूद मगर खरीदार नहीं। महंगाई ने रमजानुल मुबारक की रौनकों को मांद कर दिया। मुल्क भर में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात मुलतवी या मनसूख होने का इम्कान बढ़ गया। तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात से मुतालिक हतमी मुशावरत शुरू। मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम तालीमी बोर्ड्स की 27 अप्रैल को अहम बैठक लगेगी। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 29 लाख से बढ़ गई। स्पेन में 2,23,000, इटली में 1,95,000 और फ्रांस में 1,61,000 मरीज ज़ेर इलाज। 2 लाख से ज़ायद अफराद कातिलाना वायरस से लुक़मा-ए अजल बन गए। अमेरिका में एक और हलाकत खेज दिन। कोरोना वायरस से अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2035 हलाकतें। तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। 9.5 लाख से ज़्यादा मरीजों के साथ अमेरिका सरे फहरिस्त। मैंने कभी नहीं कहा कि कोरोना धोखा है। ऐसी बात कौन कह सकता है? अमरीकी सदर ट्रंप का पैगाम। कहा, मौजूदा मीडिया मेरे वक्त और कोशिशों के काबिल नहीं। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन का करंतना दौरानिया मुकम्मल। बरतानवी वजीर आज़म कल से दोबारा जिम्मेदारियां संभालेंगे। बोरिस जॉनसन 3 रोज ICU में गुजारने के बाद गुज़श्ता इतवार को अस्पताल से फारिग हुए थे। कोरोना के बायस हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र खाना काबा में समाजी फासले का ख्याल रखते हुए नमाज तरावीह की अदायगी। सऊदी अरब के तमाम शहरों में जुज़वी तौर पर कर्फ्यू ख़त्म करने का फ़ैसला। फ़ैसले पर 3 से 20 रमज़ानुल मुबारक तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अमल दरामद होगा। इतलाक़ मक्का मुकर्रमा और उससे मुल्हिका इलाकों पर नहीं होगा। मुलाजमत का झांसा देकर एजेंट ने पाकिस्तानी मजदूरों को जद्दा में बेआसरा छोड़ दिया। दफ्तर खारजा ने सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी मजदूरों का नोटिस ले लिया। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट को फौरी तौर पर मजदूरों के मसाइल हल करने की हिदायत जारी। ज़ल्मे खलीलज़ाद का अफ़गानिस्तान और क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए नेटो के बयान का खैर मक़दम। अपने पैगाम में कहा, नेटो ने अफ़गानिस्तान में जामे अमन मुज़ाकरात शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तशद्दुद के वाक़यात में कमी से अमन मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन और रियासती जबर के बाद अब कोरोना ने राज कायम कर लिया। सख्त कर्फ्यू के बाद कोरोना का शिकार कश्मीरियों के लिए इमदाद का कोई आसरा नहीं। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने मद्दाहों से मुआफ़ी मांग ली। 19 बरस बाद ICC एंटी करप्शन यूनिट से ताउन का ऐलान। कहा, इंसानी हुकूक क़वानीन के तहत उनके साथ भी नरमी बरती जाए। जवानों पे 2-2, 3-3 लोगों को घेर के जिस तरीके से हैवानों की तरह, गिद्धों की तरह आप लोग लाठी डंडे चलाते हो ना, अगर आप मर्द हो, सच्चे पढ़े लिखे हो, तो एक पे एक भिड़ो ना किसी से। है दम आपके अंदर। भारतीय अदाकार राजपाल भी बीजेपी की रियासती दहशतगर्दी और मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम पर बोल पड़े। कहा, भीड़ की शक्ल में 2-2, 3-3 लोगों को घेर कर कैसे गिद्ध की तरह हमला करते हैं, जो काबिल मुज़म्मत है। और किम जोंग उन अब इस दुनिया में है या नहीं? शुमाली कोरिया के सरबराह की हलाकत की खबरें सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गईं। शुमाली कोरिया से सरकारी सतह पर खबर की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हुई।